morning everyone. Dear students, today we are going to start the chapter Constitution and Design. As you have seen that in the last chapter, we have seen that democracy is not a rule in which rulers are free to do what they like, but there are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. And now let's see that these rules, what they are called. They are called Constitution. So now as we are going to start with the chapter Constitutional Design, these rules which are followed by this government to govern their countries, how these rules are formed and how this constitution is framed of that particular country. So let's see, in this chapter we are going to study about the two constitutions, one the constitution of South Africa, and second one we are going to see the constitution of India. So now we are going to start with the democratic constitution of South Africa. So this chapter starts with the speech of Nelson Mandela, who was the leader of South Africa apartheid movement. What he was saying that I have fought against white domination, I have fought against the white people, those who were ruling over their country, South Africa, and even he said I fought against the black domination also, and I have cherished the ideals of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. He said I wanted to protect lovingly those ideas of democracy and free society in which everyone will live with harmony. Harmony means together, like a brotherhood, and with equal opportunities, or it is an idea which I hope to live and to achieve also. He said that is the idea which I wanted to achieve, in which this type of ideal society I wanted to live, and even I wanted to achieve for my country also. But if needs, it is an ideal for which I am prepared to die also. And he said this is that type of idea for which even I have to sacrifice my life, then I am ready to sacrifice my life also. So who said these all words? It was told by the Nelson Mandela, who was being tried for treason. Treason means when any person is caught for betraying his own country. Betraying means अपनी country को धोखा देने के लिए या अपनी country के किसी rule को disobey करने के लिए. And he was tried. Tried means he was tried in the court by the white South African government. As we were ruled by the Britishers, so same way that time South Africa was also ruled by the white people. So these white people only tried him because he was fighting for the freedom of his country. So that is why they have given it name treason. He was betraying his own country. And he and his 7 other leaders were sentenced to life imprisonment. And what punishment they got? The life imprisonment. Fine. Lifetime imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid system, apartheid regime in the country. Because for what he was fighting that time? Because in that country there was one apartheid regime was going on, apartheid movement was going on, for which he opposed. And he spent next his 28 years in South Africa's most dreaded prison, that is Robben Island. There he was kept. In that island there was prison. Now struggle against apartheid, what was that? Apartheid was the name of a system of a racial discrimination, because there are 2 type of races were there, black people and the white people. So white people and even the colored people. So 3 type of people were there in that country, though the people of the country were discriminated on the basis of races. And the white European imposed this system on South Africa. And who has imposed this system? White people, those who were ruling over their country. During the 17th and 18th centuries, for trading companies from Europe occupied it. And who were these white people? The European people, those who have come to South Africa for trade, like how Britishers came to India for trading and then they occupied our country. The same way these people also, they went to South Africa for only trading, vyapar करने के लिए, as a trading company, and then they occupied it with some arm and force, because already what they did with India, the same way they occupied South Africa also. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa. But India may these trading companies were ruling, but their families were not settled here. But here one difference was there, here these white people settled with their families in South Africa, and they became the local rulers here. And the system of apartheid, they divided the people and labeled them on the basis of their skin color. उनके skin color के ऊपर वो उनको discriminate करते थे. नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका, नेटिव पीपल मतलब उस कंट्री के जो पर्टिकुलर लोग थे, परमानेंट लोग रहने वाले जो थे, वहाँ के रहने वाले लोग, दे वर ब्लैक इन कलर, दे आर ब्लैक इन कलर, दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन. और पूरी साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन में 3/4 पॉपुलेशन इज ऑफ ब्लैक कलर, दे वर कॉल्ड ब्लैक्स.
Besides these, there were also two more groups. These were the people of the mixed races who were called colored, who were not very fair, not very black also. So the mixed color, so they were called colored. And these people were those who migrated from India to South Africa, जो हमारे इंडिया से साउथ अफ्रीका में गए हुए थे. The white rulers treated all non-whites as inferior. इंडियंस को भी, ये जो कलर्ड पीपल थे एंड ब्लैक पीपल, दोनों को ही ये वाइट रूलर जो थे वो इन्फीरियर ट्रीट करते थे, मतलब उनको नीचा समझते थे, इन्फीरियर समझते थे. एंड द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स ऑल्सो. और इवन इन लोगों को, ना ही ब्लैक पीपल को, ना ही कलर्ड पीपल को हैव द राइट टू वोट. सो अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक. सबसे ज़्यादा ये था, जो बुरा था तो वो सिर्फ ब्लैक के लिए. वाई? बिकॉज दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट एरिया. जहाँ पे वाइट पीपल रहते थे, दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया. दे कुड वर्क इन द वाइट एरियाज, सिर्फ काम करने के लिए वहाँ जा सकते थे, बट दैट ऑल्सो दे हैड टू इशूड अ परमिट फॉर इट. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools, colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, these all were also separate for the black people. Fine. Even the toilets were all separate for the whites and the blacks. This was called segregation. इसको कहते हैं segregation, मतलब अलग कर देना, separate कर देना. They could not even visit the churches where the white worshipped. Even black people can't go to that churches where the white people were going for worshipping. Black could not form association. उनको कोई भी association, organizations form करने की भी कोई permission नहीं थी. They could not form any association also or organization also or the trade unions also. And if they were doing that, then they were treated very terribly. So since 1950, the black, colored people and Indians fought against the apartheid system. Like Gandhiji also fought there na for this apartheid system. So they launched protest marches. Even these people, what they did, उन्होंने marches निकाले, demonstrations किए, strikes किए. और वहाँ की जो मेजर पार्टी थी, दैट वॉज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. दैट वॉज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन. इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी थी जिसके साथ बहुत और छोटी छोटी जो पार्टीज़ थी वो इसी के साथ ही एफिलिएटेड थी, इसलिए इसको अम्ब्रेला कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंडर, मतलब दूसरी छोटी छोटी जो पार्टीज़ थी साउथ अफ्रीका की, उन्होंने इसके अंडर ही शेल्टर लिया, तो इसी को सपोर्ट करती थी. और ये पार्टी थी जो कि लड़ रही थी उस समय में पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट. दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स. इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारी वर्कर्स यूनियंस, कम्युनिस्ट पार्टी और भी बहुत सारी छोटी मोटी पार्टीज़ वहाँ की कंट्री की इसके साथ में मिली हुई थी, साथ मिलकर वो लड़ रहे थे इस स्ट्रगल को, इसलिए इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. मैनी सेंसिटिव वाइट्स आल्सो ज्वाइंड ANC. और काफ़ी सारे जो वाइट पीपल थे जो कि उस समय में रूल कर रहे थे कंट्री के ऊपर, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको इन ब्लैक पीपल के साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी थी. एंड दे आल्सो ज्वाइंड the African National Congress to oppose apartheid system and played a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist. बहुत सारी कंट्रीज़ जो वर्ल्ड की थी जिनको ये पता था कि यहाँ इस कंट्री में apartheid सिस्टम चल रहा है, लोगों में भेदभाव किया जाता है, उन्होंने इस पॉलिसी को, apartheid सिस्टम को अनजस्ट, मतलब अनफेयर, और बताया कि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है लोगों के बीच में, रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा है. बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल. लेकिन फिर भी ये वाइट पीपल ने इस पॉलिसी को बंद नहीं किया. एंड दे कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड इवन किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल. सो इतना सब कुछ जब चल रहा था, देन हाउ इट वॉज पॉसिबल दैट कि दे मूव टूवर्ड्स अ new constitution. As protest and struggles against apartheid has increased, the government realized that कि they could no longer keep the blacks under their rule through repression. अब जैसे जैसे ये protest और struggles बहुत बढ़ती जा रही थी, now these people felt that कि now it's very difficult to keep these black people under their control by putting force on them or by forcefully to keep them under our control. It's very difficult. So white regime changed their policies. So the white regime, now they brought some changes into their policies to rule over them. Discriminatory laws were repealed. Repealed मतलब करते थे ना जो भी कानून, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया. बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर आल्सो लिफ्टेड. जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़, साउथ अफ्रीकन पीपल को अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बनाने दे रहे थे, उसके ऊपर से भी उन्होंने बैन हटा दिया. एंड इवन जो मीडिया में वो अपना कुछ भी लिखवा नहीं पाते थे, जो भी कुछ लिखता था वो सिर्फ वाइट गवर्नमेंट ही अपनी जो भी लिखवाना चाहते थे, न्यूज़पेपर में प्रिंट करना चाहते थे, वही प्रिंट करवाते थे. बट नाउ दिस रिस्ट्रिक्शंस वर आल्सो लिफ्टेड, वो भी हटा दी गई. एंड आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नाउ नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन. और 28 साल की जेल के बाद वो फ्री होकर जेल से बाहर आए एज अ फ्री मैन. एंड फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 April
94 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड, मतलब झंडा लहराया 26 अप्रैल 1994 को फ्री साउथ अफ्रीकन कंट्री का, जो कि एक न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी थी, बिकॉज दे अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, दैट इज़ वाई उसको न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी बोला गया था उस समय में इन द वर्ल्ड। एंड एपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड। अब ये जो वाइट गवर्नमेंट थी जो एपार्थाइड सिस्टम को फॉलो कर रही थी और उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ था लोगों पर, उसका एंड हुआ, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और अब किसका जन्म हुआ? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। मल्टी रेशियल मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स मिनिस्टर्स बने और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की। नाउ हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट अस नाउ हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन, ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रांजिशन। अब हम देखते हैं कि ये नेल्सन मंडेला जी ने अपनी पहली जो स्पीच दी थी देश को, उसमें क्या कहा? हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल transition from apartheid to democratic exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other। उन्होंने ये कहा कि हिस्टोरिकल एनिमीज़ मतलब जो बहुत लंबे समय से हमारे एनिमीज़ थे वो सक्सीड हो गए नेगोशिएटिंग के लिए। सक्सीड मतलब नेगोशिएशंस का मतलब लंबी बातचीत के बाद जब हम किसी डिसीज़न पर पहुंच जाते हैं, कि काफ़ी सारे लंबे डिसीजंस बहस के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद, डिस्कशंस के बाद एक पीसफुल सोल्यूशन निकाल लिया। और उस पीसफुल सोल्यूशन के बाद अब उन्होंने कहाँ से ट्रांसमिट किया? एपार्थाइड सिस्टम से अब उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट में चेंज कर दिया अपनी कंट्री को। क्यों? बिकॉज रीज़न क्या था इसका? बिकॉज हम प्रिपेयर थे किस चीज़ के लिए? कि इन लोगों में भी कुछ गुडनेस है, क्योंकि हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो पर कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई अच्छाई छिपी होती है और उसी अच्छाई को हमने बाहर निकाला है। ये कहना था उनका उसमें डॉक्टर नेल्सन मंडेला का। सो माई विश इज़ दैट कि साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीव इन गुडनेस। तो उनका कहना है कि साउथ अफ्रीकन पीपल कभी भी गुडनेस में बिलीव करना, अच्छाई में बिलीव करना कभी ना छोड़ें। दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी। कि अगर हम किसी, चेरिश का मतलब होता है बेटे कि प्रोटेक्ट और केयर समवन लविंगली, कि अगर हम प्यार से किसी में से अच्छाई, हम अगर प्यार से किसी में से अच्छाई निकालने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें हम सक्सेसफुल भी होते हैं। और यही एक है कॉर्नर स्टोन डेमोक्रेसी का। सो आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power। अब ये ब्लैक पीपल ने जब अपनी गवर्नमेंट बनानी शुरू की तो उन्होंने अपने ब्लैक भाइयों को ये कहा कि इनको माफ़ कर दिया जाए। जो वाइट पीपल ने अपने रूल में होते हुए, पावर में होते हुए जो हमारे साथ जो भी अत्याचार किए, एट्रोसिटीज़ मतलब जो भी बुरे का हमारे साथ व्यवहार किया है, अत्याचार किया है, हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए। दे सेट लेट अस नाउ बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी, कि चलो हम एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, मैन एंड वुमेन, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को साथ में लेकर हम एक न्यू साउथ अफ्रीका वी कैन जस्ट मेक, जिसमें सोशल जस्टिस होगा, मीन सोसाइटी में सबको जस्टिस मिलेगा, एवरी वन विल बी ट्रीटेड इक्वली एंड एवरी वन विल गेट द राइट्स बीइंग अ ह्यूमन। सो द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेट द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने ये बताया कि वो पार्टी जो उस समय में कंट्री पे रूल कर रही थी, जिसने इन ब्लैक पीपल पे बहुत सारे अत्याचार किए, वो पार्टी, और वो पार्टी जिसने की आज़ादी की लड़ाई लड़ी इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़कर, जिन्होंने अपनी कंट्री को फ्री करवाया। अब एक अपोज़र और एक जो उसको अपनी कंट्री को फ्री करवाया, दोनों ही सामने सामने बैठकर अपनी ही कंट्री का, साउथ अफ्रीका का वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। जैसे हमारी कंट्री की ये प्रॉब्लम थी कि हमने ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर निकाल दिया था, बट हेयर नेल्सन मंडेला व्हाट ही डिड, ही फॉर्म अ गवर्नमेंट विद दीज वाइट पीपल। इन्होंने इन वाइट पीपल को अपने देश से नहीं निकाला, बल्कि उनको साथ में लेकर उनकी पार्टी और इनकी पार्टी दोनों ने मिलकर इलेक्शंस लड़े, और फिर जितने उनके कैंडिडेट भी जीत गए उस इलेक्शंस में, उनको भी बीच में लेकर इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिस्कशन स्टार्ट किया। एंड आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैड एवर। जो वर्ल्ड के पास पहले कभी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिला था, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका ने दिया वर्ल्ड को। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू द इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमन। कि कोई भी किसी मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी निकलेगा व्हेन वी विल नॉट बी एक्सक्लूडेड, कि हम किसी को भी पावर से बाहर नहीं निकालेंगे
और किसी को भी राक्षस की तरह या किसी बुरे इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, चाहे उन्होंने हमारे साथ कितना भी अत्याचार किया है। हमारी अच्छाई ये है कि हमें उन्हें माफ़ करके अब अपने साथ इक्वली हर चीज़ में शेयर देना चाहिए। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, कि हर किसी को इस सोल्यूशन का पार्ट बनाए, वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, चाहे उन्होंने पास्ट में जो मर्जी किया है बट अब उन्हें हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। प्रीएम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन सी एट पेज नंबर 50 लेटर ऑन सम ऑफ दिस स्पिरिट। उसमें ये आप हमें से ये सारी स्पिरिट पढ़ने के लिए मिलती है, ये सारे इनकी वैल्यूज़ पढ़ने के लिए मिलते हैं। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ अपनी कंट्री के लोगों को ही खुश नहीं किया, बल्कि और बहुत सारी डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड की जो थी उनको भी इंस्पायर किया, उनको भी इससे अच्छी शिक्षा मिली और उसको भी प्रोत्साहन मिला। A state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। एक ऐसी कंट्री जिसको पूरे वर्ल्ड ने छोड़ा हुआ था, बिकॉज दैट टाइम इट वॉज वेरी बैड कंडीशन ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसको पूरे वर्ल्ड ने डिनाउंस किया हुआ था। डिनाउंस कर देने का मतलब होता है त्याग देना। टिल रिसेंटली, और आज टिल रिसेंटली मतलब अभी तक वो एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री थी, एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी विच अदर कंट्रीज आल्सो वांटेड टू फॉलो। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका। डिटर्मिनेशन मतलब लगन, हार्ड वर्क of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences। bitter experiences थे ना उनके, जो ये ब्लैक पीपल ने वाइट पीपल ने उनके साथ किया था, सो वो सारे उन बिटर एक्सपीरियंसेस को भूलकर उन्होंने एक बहुत ही बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन, उन्होंने एक ऐसा रेनबो बनाया अपनी कंट्री के लोगों का जिसमें सभी रेसेस के लोगों को उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। सो नाउ लेट्स सी दैट कि वाई डू वी नीड सच अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। फाइन, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स सी कि वाई डू वी नीड सच अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। वाई कांट वी रूल द कंट्री विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर। ऑप्रेसर मतलब जो दूसरों को प्रेस करता है, फोर्सफुली रूल करता है, और एक ऑप्रेसर मतलब जो उनके द्वारा अत्याचार को सह रहा था। दोनों ने ही मिलकर नई डेमोक्रेसी बनाने का प्लान बनाया जिसमें सभी को इक्वालिटी दी गई थी, एंड इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। अब इतने दिनों के बाद इतना कुछ जब उन्होंने इनके साथ किया था तो इट्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट ईच अदर। दे हैड देयर फियर्स, दोनों के अपने अपने फियर्स थे, दोनों ही किसी ना किसी बात से बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। जैसे दे वांटेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, और वाइट पीपल और ब्लैक पीपल दोनों ही अपने अपने फ़ायदे को अपने अपने उसको ध्यान में रखना चाहते थे कि जिसमें उनकी कोई भी राइट्स ना डिनाई हो जाए। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल बट नॉट कॉम्प्रोमाइज़। ब्लैक मेजोरिटी जो लोग थे वो ये श्योर रखना चाहते थे कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि मेजोरिटी रूल करे, वो उसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, कि सभी को ग्रेट एक्सटेंट तक सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मतलब सोसाइटी में भी इक्वालिटी मिले और इकोनॉमी में भी उनको इक्वालिटी मिले। द वाइट मेजोरिटी माइनॉरिटी, अब वाइट पीपल माइनॉरिटी में रह गए क्योंकि उनका नंबर कम था पॉपुलेशन में। दे आल्सो वांटेड टू प्रोटेक्ट एज इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टीज़, और वो चाहते थे कि बीइंग अ माइनॉरिटी उनको कोई जो स्पेशल जो राइट्स मिले गए हैं उनसे वो ले लिए ना जाए। सो वो भी चाहते थे कि उनके राइट्स जो है वो सेफ रहें। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज़, काफ़ी लंबे समय की डिस्कशन नेगोशिएशंस होती है, डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट। इतनी ज़्यादा उन्होंने डिस्कशंस की तब जाकर वो एक एग्रीमेंट, एक समझौता किया बोथ द पार्टीज़ ने, कि वाइट एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल। वाइट लोगों ने ये कहा कि ठीक है ब्लैक पीपल मेजोरिटी में है, सो उनका रूल जो है वो मेजोरिटी रूल जो है वो फॉलो किया जाएगा, और हर पर्सन को 1 पर्सन 1 वोट विल बी एक्सेप्टेड, कि हम एक्सेप्ट करते हैं 1 पर्सन 1 वोट, और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि मेजोरिटी जो भी सीट जिसको मिलेंगी मेजोरिटी वही रूल करेगा। एंड दे आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, एंड इवन उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि कुछ बेसिक राइट्स हमें पुअर और वर्कर्स को देने चाहिए। द ब्लैक एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, और ब्लैक पीपल ने इस बात पे एग्री किया उनके साथ वाइट पीपल के साथ कि मेजोरिटी अगर ब्लैक पीपल की भी है तो वो ओवरऑल पावर जो है वो नहीं अपनी चलाएंगे, बट दे विल बी डिस्कसिंग ऑन ईच एंड एवरी स्टेप टू द वाइट पीपल। दे एग्रीड दैट कि मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। उन्होंने ये भी साथ में उनको आश्वासन दिया, उनको श्योरिटी दी कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक अवे, जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ रूल करते समय साउथ अफ्रीका में बनाई है, सो हम उन प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, वो आपकी ही रहेंगी। एंड कॉम्प्रोमाइज़ वॉज नॉट ईजी, ये कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करना इतना ईजी नहीं था कि एक बाहर की कंट्री के लोगों को अपनी कंट्री में इक्वालिटी देना। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड।
even if they manage to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? वो उनका ये कहना था कि आपको क्या लगता है कि ये इतना सब कुछ हो गया तो उसके बाद भी क्या ट्रस्ट किया जा सकता है इन लोगों के ऊपर? इफ़ दे वुड बी not breaking their trust in the future, what is the guarantee of it? So only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some basic rules. और इसीलिए ज़रूरत थी कि कुछ बेसिक रूल्स वो लिख लिए जाएँ, गेम दैट एवरी वन शुड अबाइड, और ऐसे रूल्स लिखे जाएँ जो सभी उसको माने. एंड दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चोजन. ये रूल्स थे कि फ्यूचर में रूलर्स को कैसे चूज़ किया जाएगा. एंड दीज रूलर्स आल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर. इसमें ये भी बताया जाएगा कि हाउ व्हाट पावर्स वुड बी will be with the elected governments, what they can do and what they cannot do. Finally, these rules decides the rights of the citizen also, and these rules will work only if the winner cannot change them very easily. और उन्होंने कहा कि ये रूल्स ऐसे होंगे जिनको कि अगर कोई पार्टी जीत जाती है और वो गवर्नमेंट में आती है तो वो भी उसको रूल्स को चेंज ना कर सके कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसे रूल्स बनाने चाहिए. दिस इज़ व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड एंड दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स. दे आल्सो एग्रीड दैट कि दिस रूलर्स विल बी सुप्रीम, कि रूल्स जो होंगे वो सुप्रीम होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको कोई भी टच नहीं कर पाएगा. नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर, और कोई भी गवर्नमेंट उनको इग्नोर नहीं करेगी, उसी के अकॉर्डिंगली दे विल बी रूलिंग. एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक इन साउथ अफ्रीका. एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल. दे सेड कि ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने कोई बहुत ही अलग सा काम किया. बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें ऐसे ही बहुत सारी डाइवर्स ग्रुप्स के लोग रहते हैं, डाइवर्स पीपल रहते हैं. देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक. लेकिन एक डिफरेंस ये था कि रिलेशंस बिटवीन इनके जो डाइवर्स ग्रुप थे साउथ अफ्रीका के, देयर रिलेशनशिप वॉज वेरी बैड बिकॉज वाइट पीपल डिस्क्रिमिनेटेड विद दैम. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. लेकिन हर कंट्री में डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, वेदर वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है. मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स, और सभी कंट्रीज़ में दीज बेसिक रूल्स आर इंपॉर्टेंट. दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू द गवर्नमेंट्स, इवन एनी कोई छोटी सी एसोसिएशन हो, स्कूल हो, हर कहीं पर अगर रूल्स नहीं है तो वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया जा सकता. सो नाउ लेट्स सी दैट कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री. Constitution of the country is the set of written rules that are accepted by all people living together in a country. This is the definition of it. And constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens, and also the relationship between the people and the government. So ये constitution जो है एक ऐसा supreme law है जो हमें बताता है कि relationship लोगों के बीच में कैसी होनी चाहिए जो कंट्री में रह रहे हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट हाउ इट हैज़ टू बी. सो इट ऑल दे हैव डिस्प्लेड थ्रू द रूल्स. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन डू मैनी थिंग्स फॉर अस. फर्स्ट, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसीलिए वी ट्रस्ट ईच अदर, एंड हमें पता है कि चाहे कोई भी हमारे साथ कोई भी इनजस्टिस कर जाए, बट कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं वो किसी के साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं करते. सो वी हैव अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट. सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कि गवर्नमेंट कैसे कंपोज की जाएगी, एंड विच पावर्स द गवर्नमेंट हैज़ टू exercise. Third, it lays down limits on the powers of the government. Not only it gives powers but also puts some limits on the powers of the government also. And even it also tells us about the rights of the citizens. And fourth, it expresses the aspirations of the people about creating a good society. और हमें ये भी बताते हैं कि what are the aspirations of the government, aspirations of the people about creating a good society. Aspirations means a hope or ambition of achieving something. ठीक है, एस्पिरेशंस का मतलब होता है आई होप एंड एम्बिशन टू अचीव समथिंग. सो लोगों की क्या होप है कि वो कैसी सोसाइटी, गुड सोसाइटी का मतलब उनका क्या मतलब है उससे, गुड सोसाइटी से वो क्या चाहते हैं. ये भी था फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन. सो ऑल कंट्रीज़ दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेसी. हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी कंट्रीज़ में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है दैट आर डेमोक्रेटिक, बट ऑल कंट्रीज़ दैट आर डेमोक्रेटिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू हैव अ constitution. After the war of independence against Great Britain, even the Americans gave themselves a constitution. After the revolution, the French people also approved a democratic constitution. Since then, it has become a practice in all democracies कि when any country chooses the democratic type of government, then they are framing a constitution for their country. So today till here only. Goodbye.